Good morning, dear students. I, Vidyasagar, your SS teacher, welcome you all in the e-learning class of Modern International School Iswa. Today, I am going to start subject SPL of Standard 8, and this is on confronting marginalization. Dear students, in the previous chapter, we had understood that how the powerless peoples of the society, how they are being influenced by the powerful people. It means the minority peoples, how they are being demoralized by the majority peoples. So in this chapter we are going to discuss that how they should confront about this, and we have already seen that how the different powerless peoples, or you can say the marginalized people, they have fought for their rights. It means they have given the ideas of the constitution, and they have told it that our constitution, it has given the all peoples equal rights. It means no any peoples should be discriminated on the basis of their caste, religions. Okay, and if those peoples basically belongs to the Dalits, or you can say the weaker section of the society, so they have fought for their equal rights with the power full peoples, as well as they have also challenged to their uh, constitutional reforms. Okay, now they also have seen that different type of struggle was there. Wherever we also used to see that the term of the exploitation, it was also using at that time. So the constitution, which we have already studied in chapter first, there we have seen that how our constitution, it gives all the people equal rights, wherever they are belongs to the higher caste or the lower caste. Each and every people's their rights and their fundamental rights. Dear students, our fundamental right is mentioned in the constitution in part 3 from article 12 to 35, है ना। हमारे संविधान में जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है ना। इट मीन्स कि व्हाट शुड बी द बेसिकल फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स की जो चर्चा है इन दिस रिगार्डिंग आर्टिकल 17, है ना। आर्टिकल 17 इट टेल्स अस दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल ऑफेंस। और आर्टिकल 17 में ये बतलाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में अगर छुआछूत जैसी चीज़ों को अगर अपने दैनिक जीवन या उसे इस्तेमाल करता है, तो उसे जो है ये एक दंडनीय अपराध है अगेंस्ट एनी ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के किसी भी गरीब तबके के या किसी भी कमज़ोर तबके को अगर इस तरह की घटना का विवरण किया जाता है तो उसे जो है वो कठिन सज़ा मिलती है। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल 15, है ना। और एक आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 15 की चर्चा की गई है। इन दिस all the peoples, they were in the earlier times, those peoples who used to be belongs to Dalits. The term Dalit, it means broken, it means those peoples, they are away from the society. So basically what we used to see that those people who were away from the society, और वैसे लोग जो सोसाइटी से अलग थे, they all are ना being सारे बीइंग ट्रीटेड इक्वली, सारे लोगों को ट्रीटेड इक्वली किया जाता था। बिकॉज आर्टिकल 15 टेल्स अस दैट एनी ऑफ द पीपल्स दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन, दोज पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। यानी कि किसी की रंग, किसी की जाति के आधार पर जो है उसे जो है हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ क्लियरली मेंशन इन द आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 में जो है ये मेंशन किया गया है। इसके साथ हम लोग देखते थे कि इन द अर्लियर टाइम्स पीपल्स दे डू नॉट अलाउड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू इंटर इनटू द टेम्पल्स, एंड दोज पीपल्स दे वेर यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ द मेजॉरिटी पीपल्स। यानी कि बहुसंख्यक जो लोग होते थे उनसे वो काफ़ी डरे सहमे होते थे। एंड व्हाट वी यूज टू अंडरस्टैंड, और हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, दैट ऑल दोज पीपल्स दे हैव
गेट द इक्वल राइट्स। यानी कि पहले के समय में यह भी कहा जाता था कि किसी सामान कुएं से जो है छोटे लोगों को पानी भरने की अनुमति नहीं थी, है ना। उन्हें हर जगह पे जो है कास्ट को लेकर, उनके समाज को लेकर उन्हें जो है वो प्रताड़ित किया जाता था। दे ऑल वेयर इन टायरनी। सो व्हाट इट वाज डिस्कस्ड लेटर, और इसे यह बतलाया गया दैट दिस ऑल थिंग्स आर क्विटेड नाउ एंड एज इट ऑल मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीज़ों को बंद किया गया और ये सारी बात जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, ठीक है। फर्दर द दलित्स दे ऑल्सो ड्रॉ ऑन द फंडामेंटल राइट्स दैट दे आर फील treated badly when someone individually about community even by the government। और कभी कभी ये होता है कि ये चीज़ बतलाया गया कि दलित जो है वो भी अपने आप को बुरा फील करते हैं, है ना, जब उनकी समाज, उनकी जातीय व्यवस्था के बारे में जो है अगर इस तरह की बात की जाती है, ठीक है। सो एंड ये बतलाया गया कि ऑल द पीपल्स, है ना, सारे लोग, दोज पीपल्स हु यूज टू प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, सारे लोग जो है वो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। सो दे ऑल हैव द फ्रीडम, सारे लोगों को जो है अपने आप में फ्रीडम है टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। सभी लोगों को जो है अपने अपने रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। वेयर एवर दे आर नॉट बाउंडेड टू एनीथिंग, वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में बंधे हुए नहीं हैं। एंड दिस वॉज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है ये इंश्योर किया गया था, ये बतलाया गया था दैट दीज आर बीइंग प्रिविलेज्ड, इन सभी को प्रिविलेज इसलिए दिया गया बिकॉज दीज ऑफ द रिलीजन शुड नॉट बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ये लग रहा था कि समाज के एक तबके से जो है इनका समाप्ति नहीं हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।